Dear students, very good morning. Welcome to Jasveer English Grammar YouTube channel. We are preparation for CET, Common Eligibility Test, which is necessary in Haryana for the government job. We are learning about question words. What, where, when, why, how, who, whose, how, who, whose, whom, and which. We are learning about the question word. हम लर्न कर चुके हैं what, who, whose, whom. इन चार क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम लर्न कर चुके हैं. मैंने बताया था what का प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है. कल हमने किया था where is used for place, when expresses time, why for reason, how for manner, who, whose, whom for persons, and which for choice. Am I clear? We have learned about it. Today we learn. Here are some examples. Please write. I don't know the place. I don't know the place. He lives somewhere. I don't know the place. He lives somewhere. These are the two sentences, and we have to combine these. ये क्लास में भी काम आ रहे हैं, सेंटेंस कनेक्टर में भी काम आ रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आएंगे क्वेश्चन वर्ड. Am I clear? There is a lot of use, many uses of question words. Therefore, we have learned in the very beginning. I don't know the place. He lives somewhere. When we combine these two sentences, the sentence expresses place. तो प्लेस इस सेंटेंस के अंदर किसको दर्शाया गया भाई? प्लेस को. और प्लेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का. तो हम इन सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कैसे पड़ेगा? आई डोंट नो कंबाइन करेंगे तो आई डोंट नो द प्लेस. आई डोंट नो द प्लेस. अब ये समवेयर यहां से खत्म, इसके स्थान पर वेयर. आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, एंड फुल स्टॉप. समवेयर is changed into where. Somewhere removed and changed is where is used. I don't know the place he lives somewhere. I don't know the place where he lives. और दूसरा सेंटेंस एक और पढ़ा सकते हैं. सेकंड सेंटेंस, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स. आई डोंट नो वेयर ही लिव्स. What is the difference between these two sentences? In the first sentence, the place is used, and in the second sentence, it is removed. What is the difference? We will learn in classes about this. Okay? Next sentence है भाई. Do you know the time? Do you know the time? When will he come? These are the two sentences. When will
he come? Do you know the time when will he come? Combine the sentence. टाइम का जिक्र है तो हम किस का यूज करेंगे? when का, when already given, तो इसको चेंज करो भाई. Do you know the time? Do you know the time? First sentence is interrogative. Then in the last of the sentence we use question mark, sign of interrogation. Do you know the time when he? यहाँ सेंटेंस असर्टिव टाइप हो जाएगा भाई. सब्जेक्ट वर्ब एक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट. When he will come. Do you know the time when will he come? Do you know the time when he will come? And sign of interrogation. और इसका क्या बना सकते हैं भाई? और do you know the time? सॉरी, टाइम हटाए, रिमूव कर देंगे. Do you know when he will come? Do you know when he will come? Am I clear भाई? लिखो प्लीज. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जहां स्थान था वहां हमने वेयर का यूज किया, जहां समय आया वहां when का प्रयोग कर लिया. Am I clear? नेक्स्ट भाई. He was very angry. He was very angry. Do you know the reason? Do you know the reason? आप रीजन आ गया भाई, तो किसका प्रयोग करोगे? वाई का. रीजन के लिए व्हाट इज यूज फॉर रीजन? वाई इज यूज. अब इसको कंबाइन करेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को. डू यू नो? डू यू नो द रीजन? वाई? डू यू नो द रीजन वाई ही वॉज वेरी एंग्री? Why he was very angry? Sign of interrogation. क्योंकि मेन क्लास जो है, पहली क्लास इंटेरोगेटिव है. डू यू नो द रीजन वाई ही वॉज वेरी एंग्री? और भाई और क्या बन जाएगा? डू यू नो? शाबाश, पढ़ा लिया. वेरी गुड. साथ मेरे से भी आगे निकल गए. ये होती है भाई कलाकारी. वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. मैंने लिखा ही पहले ही बोल दिया. डू यू नो वाई ही वॉज वेरी एंग्री? वाई ही वॉज वेरी एंग्री. शाबाश. ऐसे होने चाहिए बच्चे जो टीचर से भी आगे चल पड़े. डू यू नो वाई ही वॉज एंग्री? एम आई क्लियर? इट इज एक्सप्रेसेस रीजन. वाई का प्रयोग. नेक्स्ट सेंटेंस है भाई. You have sold the sum. You have sold the sum. You have sold the sum. Tell me this. Tell me this. You have sold the sum. तुमने सवाल निकाल दिया. You have sold the sum. कैसे निकाला? कौन सा तरीका था? अगले पिछले का देखा.
या चीटिंग कर रहा था, कॉपी नकल बना के ला रहा था, हाउ, कैसे, किस ढंग से, तो यहां हम हाउ का प्रयोग करेंगे। कंबाइंड कैसे, टेल मी हाउ, मैनर, हाउ यू हैव solved the sum. Tell me how you have solved the sum. Am I clear, bhai? Next है sentence भाई, which do you like most? Which do you like most? Which do you like most? Please tell me. Sign of interrogation. Which do you like most? Please tell me. जब खास मेहमान घर पर आ जाते हैं, गेस्ट जब घर पर आते हैं, तो आप उनसे पूछते हो बहुत दिनों में आए हो, क्या खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स लोगे, कॉफी लोगे, चाय लोगे, क्या लोगे, क्या पियोगे, क्या खाओगे। Which do you like most? आप क्या पसंद करते हैं? Please tell me. वही चीज ले आके देंगे। ओके? आते कभी गेस्टों को ऐसे करते हो कि नहीं करते? वेरी गुड। देखते भाई एक दिन कह रहे बच्चे कह रहे सर आप आके देखो, आप जो कहोगे वही लाएंगे। वेरी गुड। देखता हूं एक दिन तुम्हारे घर आएंगे भाई, जरूर आएंगे। Which do you like most? Please tell me. Please tell me, please tell me which you, सेंटेंस assertive टाइप हो जाएगा भाई। Please tell me which choice, which you like most। यहाँ choice को प्रकट कर रहा है, which you like most and full stop। ओके भाई, आगे से में सभी के क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए 9 क्वेश्चन वर्ड थे, 9 के 9 कंप्लीट। बाकी अगली क्लास में आगे देखेंगे कौन सा जरूरी टॉपिक है, उसी को करेंगे। एम आई क्लियर? प्लीज जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।